بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹ آج ہم کلاس 10 فزکس بک کے یونٹ 12 ویوز کو اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں. اسٹوڈنٹ لیکچر سیریز میں ہمارے پاس اس پلے لسٹ کا یہ لیکچر نمبر 2 ہے جس میں آج ہم انشاءاللہ کور کریں گے 12.3 اور 12.4 آرٹیکل وچ از اباؤٹ کریکٹرسٹکس ویوز پیرامیٹر اینڈ ویوز اینڈ دیئر ٹائپس. تو اسٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ ہائیلی اینیمیٹڈ لیکچر ہے اور اس اینیمیشن کی مدد سے آپ بہت اچھے سے سمجھیں گے کہ ویوز پیرامیٹرز کیا ہیں اور ویوز کی ٹائپس کیا ہیں. یہ بڑے ہی امپورٹنٹ اس پورے چیپٹر میں جو امپورٹنس ہے جو ویٹیج ہے وہ ان ٹاپک کی کافی زیادہ ہے. تو میرے خیال میں آپ کو بہت اچھے سے اور فلی اٹینشن کے ساتھ اس لیکچر کو سننا چاہیے. اس کے علاوہ یہاں ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک واٹس ایپ چینل ہے جس کے اوپر ہم پی ڈی ایفس کی فارم میں ان تمام لیکچرز کو وہاں اپلوڈ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو یہاں ویڈیو لیکچر سے دیکھ کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ اس کو سمجھیں اور ایٹ دا اینڈ جو ہے ان پی ڈی ایفس کو لینے کے لیے اس ویڈیو ڈسکرپشن میں اس چینل کا لنک ہے اس کو جوائن کیجیے اور وہاں ڈے بائی ڈے جو ہے پی ڈی ایف اپلوڈ ہوتے جاتے ہیں تو وہاں سے آپ ایزیلی پی ڈی ایف لے سکتے ہیں. تو چلتے ہیں موو کرتے ہیں اپنے لیکچر کو سمجھتے ہیں کہ ویوز کریکٹرسٹکس کیا ہیں, ویوز کریکٹرسٹکس کے پیرامیٹرز کیا ہیں. تو آئیے موو کرتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف. ڈیئر اسٹوڈنٹ اب ہم سمجھتے ہیں 12.3 آرٹیکل وچ از کریکٹرسٹکس ویوز پیرامیٹر. اسٹوڈنٹ اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس کو سمجھنے سے پہلے اگر میں آپ لوگوں سے یہ کوشچنس کروں کہ آپ کس طرح ڈسٹنگوش کریں گے ایک ٹائپ کی ویو کو دوسری ویو کی ٹائپ سے. لیٹ سپوز اگر میں کہوں کہ ایک ساؤنڈ ویوز ہے اور ایک وہ ویوز ہیں جو واٹر کے اندر پروڈیوس ہو رہی ہیں یا پھر لائٹ ویوز ہیں, تو ایک ویوز کو دوسری ویو سے آپ کس طرح سے ڈسٹنگوش کریں گے, کس طرح سے کہیں گے کہ یہ ویوز اور ہے اور یہ دوسری جو ساؤنڈ ویوز ہے وہ اور ہے, واٹر کے اندر جو ویوز پروڈیوس ہو رہی ہیں وہ اور ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ان ویوز کے پیرامیٹرز کیا ہیں, یعنی ان ویوز کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں. تو اس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہاں ہم نے سب سے پہلے یہی تو لکھا ہے کہ ویو پیرامیٹر از بیسیکلی ڈسکرائب ہاؤ ون ویو از ڈفرینٹ فرام ادر. ویو پیرامیٹر بیسیکلی ہمیں یہ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ ایک ویو دوسرے ویو سے کس قدر مختلف ہے, یا پھر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ پیمانہ ہے, یہ وہ سکیل ہے جس میں ویوز کو میئر کیا جاتا ہے کہ ویوز کے پیرامیٹرز کیا ہیں. یہ بیسیکلی ویوز کا ایک سکیل ہے. تو سم ویو کریکٹرسٹکس, کچھ ویوز کی کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں پروڈکشن پر کہ ویوز پروڈیوس کیسے ہو رہی ہیں, لیکن کچھ ویوز کی کریکٹرسٹکس ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ ویوز ٹریول کہاں ہو رہی ہیں, کس میڈیم کے اندر ٹریول ہو رہی ہیں. تو ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس کی اسٹڈی کر کے یا ڈفرینٹ پیرامیٹرز کی اسٹڈی کر کے ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم بتاتے ہیں کہ ایک ویوز دوسری ویو سے کس قدر مختلف ہے. تو ان میں جو پہلا پیرامیٹر ہے, پہلی کریکٹرسٹکس ہے, وہ ہے ویو لینتھ. تو اسٹوڈنٹ یہ ویو لینتھ کیا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں. اسٹوڈنٹ ویو لینتھ کی ڈیفینیشن جو آپ کی بک میں ہے وہ یہ ہے کہ دا شارٹیسٹ ڈسٹینس بٹوین پوائنٹ ویئر دا ویو پیٹرن ریپیٹ اٹ سیلف, یعنی جہاں سے ویو پیٹرن دوبارہ شروع ہوتا ہے یہ وہ دو پوائنٹس کے درمیان کم سے کم فاصلہ ہے جہاں سے ویو پیٹرن دوبارہ شروع ہو, اس کو ہم ویو لینتھ کہتے ہیں. اسٹوڈنٹ یہ سمجھیں, یہاں دیکھیں کہ فار ایگزامپل ویو یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے جہاں لکھا ہے کریسٹ, اس کریسٹ سے ویو سٹارٹ ہو رہی ہے اور یہ نیچے جا رہی ہے, یہ دوبارہ وہی پیٹرن آ گیا ہے. تو یہ والا پیٹرن اس پوائنٹ اور اس پوائنٹ کے بعد ویو دوبارہ وہیں سے ویسے ہی سٹارٹ ہو رہی ہے, پیٹرن ریپیٹ کر رہی ہے جو اس پوائنٹ کے بعد پیٹرن ریپیٹ کر رہی ہے. تو ان دو پوائنٹس کے درمیان جو ڈسٹینس ہے اس کو ہم ویو لینتھ کہتے ہیں. ٹرانسورس ویوز اور لانگیٹیوڈنل ویوز میں ویو لینتھ میں تھوڑا فرق ہے. اب یہ ٹرانسورس ویوز یا لانگیٹیوڈنل ویوز کیا ہے اس کو ہم سمجھیں گے ڈیٹیل میں اسی لیکچر کے اینڈ میں. یہ ایک ڈیٹیل کانسیپٹ ہے, یہ اتنا جلدی سمجھ نہیں آتا. آپ یوں سمجھیں کہ دو طرح کی ویوز ہوتی ہیں, ایک ٹرانسورس ویوز ہوتی ہیں, یہ جو میں نے ابھی یہاں بنائی ہیں یہ ٹرانسورس ویوز ہیں, اور ایک لانگیٹیوڈنل ویوز ہے. تو ان دونوں میں جو ویو لینتھ ہوتی ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو ٹرانسورس ویوز میں جو ویو لینتھ ہوتی ہے یہ ڈسٹینس ہوتا ہے بٹوین ٹو کنزیکٹیو کریسٹ اور ٹرف. اب یہ دیکھیں, یہ کریسٹ ہے اس کا جو ہائیسٹ پوائنٹ ہے, اور یہ لوئسٹ پوائنٹ کو ہم ٹرف کہتے ہیں مین پوزیشن پہ. تو یہ جو اس کا ہائیسٹ پوائنٹ ہے اس کو کریسٹ کہتے ہیں. تو ایک کریسٹ سے دوسرے کریسٹ کے درمیان جو ڈسٹینس ہے اسٹوڈنٹ اس کو ہم ویو لینتھ کہتے ہیں.
लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में ऐसा नहीं होता। स्टूडेंट अगर आपने कभी किसी स्प्रिंग को कंप्रेस किया हो तो जब आप कंप्रेशन करते हैं स्प्रिंग को और फिर आप उसको रिलीज कर ले तो स्प्रिंग इस तरह टू एंड फ्रो मोशन करता है, यानी कुछ हिस्सा उसका कंप्रेशन में आ जाता है और कुछ रेयर फ्रिक्शन हो जाता है। तो दो कंप्रेशन के दरमियान जो डिस्टेंस है इसका मीन ले लें, इस कंप्रेशन, ये काफी ज्यादा कंप्रेशन है और ये कंप्रेशन, तो दो कंप्रेशन के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम वेव लेंथ कहते हैं। यहां लिखा है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन। आप इसको मजीद इस एनिमेशन की मदद से भी स्टूडेंट समझ सकते हैं। यहां अगर मैं इसको प्ले करूं तो ये देखें कि ये यहां से अगर स्टार्ट हो रही है, ये यहां मैं पॉइंट ले लेता हूं, ये देखें, एक मिनट, ये इस पॉइंट से अगर वेव ये स्टार्ट हो रही है तो इधर से लेकर इधर तक का जो डिस्टेंस है जिसकी वेव लेंथ है, इसी तरीके से ये दो कंप्रेशन के दरमियान जो डिस्टेंस है ये भी इसकी वेव लेंथ हो जाएगी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं और समझते हैं मजीद वेव लेंथ के बारे में। इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप यहां से नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें कि सिंबल क्या है वेव लेंथ का। वेव लेंथ का सिंबल लैम्डा है जो कि ग्रीक लेटर है और ऐसे यूनिट वेव लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में। ये स्टूडेंट एक और पॉइंट वेव लेंथ के बारे में है कि वेव लेंथ डिपेंड करती है ऑन बोथ सोर्स एंड मीडियम, के सोर्स पर भी डिपेंड करती है कि कहां से वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं और मीडियम्स पर भी डिपेंड करती हैं कि किस मीडियम में ट्रेवल हो रही हैं। अगर एक मीडियम से, जैसे लाइट है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ये ट्रांसफर होती है, आप यूं समझें कि एयर से अगर गिलास के अंदर लाइट जा रही है तो उस दौरान उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। तो मीडियम के चेंज करने से वेवलेंथ चेंज होती है और डिफरेंट सोर्स के चेंज करने से तब भी वेवलेंथ चेंज होती है। तो वेवलेंथ डिपेंड करती है सोर्स और मीडियम दोनों पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग वेवलेंथ। अच्छा, यहां आई थिंक मैं वेव कह गया हूं, ये वेव नहीं है, वेव लेंथ है। नेक्स्ट देखें कि वेव लेंथ कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फार्मूला। वेव लेंथ जो है हम इसको कैलकुलेट करते हैं इस फार्मूला की मदद से। वेव लेंथ, ये फार्मूला क्या है, आई थिंक कि ये इस चैप्टर में कहीं ना कहीं इसकी डेरिवेशन आ जाएगी, क्योंकि प्रीवियस बुक में इसकी डेरिवेशन थी, तो हम इसको कर लेंगे। जस्ट यहाँ आप इसको समझे ऐसे कि ये एक रिलेशन होता है वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ के दरमियान। तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है v/f, यानी यहां देखें कि लैम्डा जो है वेलोसिटी के साथ डायरेक्टली रिलेशन में है और फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्सली। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेव लेंथ ज्यादा होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वेव लेंथ ज्यादा होगी, लेकिन ये वेव लेंथ निकालने का एक फार्मूला भी है। नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। स्टूडेंट सेकंड हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और बच्चों को मेरे ख्याल में यहाँ बड़ी कंफ्यूजन होती है कि ये वेव फ्रंट क्या है। ये उनके लिए शायद एक नई चीज आ रही है और इससे पहले वो इससे फेमिलियर नहीं है, लेकिन ये बड़ी ही सिंपल सी चीज है। इसको हम समझते हैं इस एग्जाम्पल की मदद से। यहाँ देखें कि लेट्स सपोज करें कि यहाँ हमारे पास एक सोर्स है, लाइट का सोर्स है, यानी आपने सिंपली एक बल्ब लगा दिया है यहाँ, और जब ये लाइट यहां से प्रोड्यूस होगी तो ये डिफरेंट डायरेक्शंस में ट्रेवल करेगी। यानी फॉर एग्जांपल थोड़ी देर बाद हमने देखा तो ये जो लाइट के सोर्स से लाइट यहां पहुंच गई, इधर इस तरह हमने एक जो है वो डॉट लगा दिया, ये वाइट कलर का आप देख रहे हैं। यहां से पहुंचने के बाद यहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई, तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल करेगी। अब ये जो पॉइंट है इसको हम लोकस कहते हैं। इन पॉइंट्स को, इन तमाम लोकस को अगर आप मिला दें, यानी ग्रुप ऑफ ऑल लोकस या ऑल पॉइंट जो कि ट्रेवल हुए हैं सम डिस्टेंस ड्यूरिंग अ फिक्स्ड इंटरवल, एक खास टाइम के बाद, एक फिक्स इंटरवल के बाद, यानी जितना टाइम इसने लगाया है इतना ही टाइम इसने लगाया है, एक फिक्स इंटरवल के बाद ये जो लोकस पॉइंट मिले हैं, इन सब के ग्रुप्स को अगर आप इधर एक ग्रुप बना दें तो एक लाइन आपको लगानी पड़ेगी। तो ये जो आपने लाइन लगाई है ना, बेसिकली ये जो स्फेरिकल लाइन लगा रहे हैं, ये कर्व लगा रहे हैं, इसको हम कहते हैं वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट डिफरेंट तरह के होते हैं। कुछ अगर यही लाइट सोर्स थोड़ा दूर होता तो ये प्लेन वेव फ्रंट बन रहे होते, जिस तरह यहां दिखाया जा रहा है। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट भी होते हैं, लेकिन ये थोड़ा शायद आगे का कॉन्सेप्ट है। इसको इस तरह से करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को कि आप जो है वो आगे का कॉन्सेप्ट लें। जस्ट इतना समझें कि ये ग्रुप ऑफ ऑल पॉइंट्स है जो कि ट्रेवल हुआ है कुछ डिस्टेंस पर ड्यूरिंग फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन अगर मैं इसकी एक और डेफिनेशन भी आप लोगों को बताऊं तो एक और डेफिनेशन में आप इसको यूं कह सकते हैं कि इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट
of a medium which are vibrating in the same phase. ये स्टूडेंट नेक्स्ट लेवल की थोड़ी डेफिनेशन है. अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ अ मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज. यानी ये जो पॉइंट होते हैं, ये जो लोकस पॉइंट होते हैं, ये सेम फेज में वाइब्रेट हो रहे होते हैं. इसको हम क्या कहते हैं? वेव फ्रंट कहते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट मूव करते हैं. सेकंड हमारे पास है जी वेव क्रेस्ट और वेव ट्रफ. तो इस तरह यहां जैसा कि डेफिनेशन में लिखा है कि अ क्रेस्ट पॉइंट ऑन द वेव इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट विद इन द साइकिल. साइकिल में जो अपवर्ड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम क्रेस्ट कहेंगे. और जबकि वाइल ट्रफ इज द ओपोजिट टू द क्रेस्ट, ट्रफ के ओपोजिट होता है, सो इट इज द मिनिमम और लोएस्ट पॉइंट ऑफ द साइकिल. यानी ये क्रेस्ट है जो मैक्सिमम पॉइंट है अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट में. ये इसकी मेन पोजीशन, यहां लाइन लगाएं, ये मेन पोजीशन है. इस मेन पोजीशन से ये जो मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है इसको हम क्रेस्ट कहेंगे, और मिनिमम डाउनवर्ड जो इसका पॉइंट है वो क्या है? ट्रफ है. नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ. नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड. इसको मैं यहाँ फिगर से समझाने की कोशिश करूंगा. इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट हम किसे कह रहे हैं और एम्पलीट्यूड किसे कह रहे हैं. स्टूडेंट ये देखें कि ये जो हमारे पास वेव बनी हुई है, यहाँ डिफरेंट पॉइंट्स की मदद से बनी है. यहाँ अगर मैं पॉइंट कुछ ड्रॉ कर दूं आप लोगों के लिए, यानी यहाँ मैं एक पॉइंट ड्रॉ कर देता हूँ. ये मैंने पॉइंट ड्रॉ कर दिया, ये मैंने पॉइंट ड्रॉ कर दिया, और फॉर एग्जांपल ये मैंने एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया. ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये इसको अगर मैं इधर मेन पोजीशन से मिला दूं, एक स्ट्रेट लाइन लगाऊं, ये मेन पोजीशन से मैंने मिला दिया, तो ये जो पॉइंट है वो मैक्सिमम दूर है. मेन पोजीशन से मैक्सिमम जो दूर पॉइंट होगा ना, ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा मेन पोजीशन से, इसको हम कहेंगे एम्पलीट्यूड. तो यहां जैसे डेफिनेशन भी लिखी है कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन ऑन द आइदर साइड. अच्छा, ये ऊपर भी हो सकता है और यहां नीचे भी, ये पॉइंट बनेगा नीचे. तो ऑन आइदर साइड इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को मैक्सिमम मीन पोजीशन से कोई पॉइंट कितना दूर है वो इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है. लेकिन ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड नहीं, इसको हम सिंपली डिस्प्लेसमेंट ही कहेंगे. यानी डिस्प्लेसमेंट की हम डेफिनेशन ये करते हैं. इसको अगर मैं यहां से रिमूव कर दूं और लिखूं, आप समझ गए हैं कि बाकी जितने पॉइंट हैं उसको हम उसके लिए वर्ड डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे, लेकिन जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसके लिए वर्ड आपने यूज करना है एम्पलीट्यूड. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड, और बाकी जो पॉइंट्स हैं वेव के वो मीन पोजीशन से कितना दूर हैं उसके लिए हम सिंपली डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे. डिस्प्लेसमेंट को x से और एम्पलीट्यूड को x नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है. दोनों की यूनिट मीटर ही है. यहां मैं इसको रिमूव करके उस डेफिनेशन को दिखाना चाहता हूं आप लोगों को. एक मिनट जरा, ये अगर रिमूव हो जाता है. नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन. तो ये स्टूडेंट देखें कि द सेपरेशन बिटवीन मीन पोजीशन एंड एनी पॉइंट ऑन आइदर ऑन राइट और लेफ्ट, यानी राइट या लेफ्ट किसी भी साइड पर ऑफ द मीन पोजीशन के राइट या लेफ्ट किसी भी साइड पर कोई भी पॉइंट जो होगा वो वेव डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा. ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन मीटर, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड कहलाएगा. नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है टाइम पीरियड. टाइम पीरियड क्या है कि इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं. यानी एक वेव कितना टाइम लेती है, यानी क्रस्ट से फिर वो दाके अपना दोबारा पैटर्न को रिपीट करे, एक क्रस्ट से स्टार्ट होकर दूसरे क्रस्ट तक जाए, तो ये जो मैक्सिमम टाइम लेगी इसको हम कहेंगे टाइम पीरियड कहेंगे. नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट. नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है जो अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है वेव पैरामीटर्स की, वो है फ्रीक्वेंसी. अब फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट बाय एन ऑसिलेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड. एक सेकेंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट होते हैं ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी कहलाता है. और इट इज मेजर्ड इन साइकिल पर सेकेंड, सीपीएस और हर्ट्ज. और रिलेशन क्या है बिटवीन टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का? तो टाइम इज इक्वल टू 1/f होता है. यानी टाइम और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन है. ज्यादा टाइम होगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, हाँ कम फ्रीक्वेंसी होगी तो टाइम पीरियड ज्यादा हो जाएगा. नेक्स्ट स्टूडेंट मूव करते हैं अपने सेकंड आर्टिकल की तरफ.
डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास सेकंड आर्टिकल है आज के लेक्चर का, विच इज 12.4 वेव्स एंड देयर टाइप्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वेव्स की क्लासिफिकेशन, कि वेव्स को हम कितने ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। तो इसके लिए ये थोड़ा मैं आपकी बुक से हटकर चला हूँ, लेकिन बात वही की वही है। देखें कि वेव्स की ना टू मेन कैटेगरीज हैं। एक हमारे पास है मैकेनिकल वेव्स और एक हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। स्टूडेंट, आपकी बुक जो है वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये जो क्लासिफाई करती है वो ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम कर रही है। यानी मीडियम के लिहाज से वेव्स की दो मेन कैटेगरीज हैं। एक मैकेनिकल वेव्स जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। आप मीडियम से क्या मुराद है, आप सिंपली यूं समझ लें, जिस तरह से अब मैं कहूं कि करंट मूव कर रहा है, तो करंट को मूव करने के लिए किसी चीज, ऐसे तो नहीं है कि करंट हवा में मूव करता है, उसको वायर चाहिए, वो वायर के अंदर मूव करता है, तो वायर जो है वो उसका मीडियम है। तो ऐसी वेव्स जिसको मूव करने के लिए कुछ मीडियम चाहिए, वो मैकेनिकल वेव्स कहलाएंगी। यानी यहाँ पार्टिकल्स उसको चाहिए और यहाँ उसको किसी पार्टिकल की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद ही वेव्स मूव करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके बाद जो मैकेनिकल वेव्स हैं, इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, ट्रांसवर्स वेव्स हैं। फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हमारे पास साउंड वेव्स हैं, साइज्मिक पी वेव्स हैं, प्राइमरी वेव्स, और वाटर ट्रांसवर्स वेव्स में वाटर वेव्स और साइज्मिक एस वेव्स हैं। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में फिर लाइट वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, एक्स रेज हैं, रेडियो वेव्स हैं। ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। लेकिन इससे नीचे नीचे आपकी बुक इनको कैटेगराइज करती है ऑन द प्रोपगेशन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन, के वेव्स कैसे मूव करती हैं उसके लिहाज से दर्जाबंदी करती है, और उसके लिहाज से वो टू मेन कैटेगराइज करती है। एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और एक है ट्रांसवर्स वेव्स। अब आल्दो के ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये इनको मीडियम की जरूरत नहीं होती, लेकिन इनकी नेचर क्या है, इनकी प्रोपगेशन क्या है, तो इनकी प्रोपगेशन ट्रांसवर्स वेव्स है। यानी आप इसको यहां भी लिख सकते हैं, ये ट्रांसवर्स वेव्स में। लेकिन फिर ये नहीं कहना कि ये मैकेनिकल वेव्स हैं, ये मैकेनिकल फिर नहीं रहेंगी। जस्ट इसको प्रोपगेशन के लिहाज से अगर हम देखें, तो प्रोपगेशन के लिहाज से दो मेन कैटेगरीज हैं, जैसे मैंने अभी बताया, एक लॉन्गिट्यूडनल है और एक ट्रांसवर्स वेव्स है। तो सबसे पहले हम इस मैकेनिकल वेव्स में, तो आगे हम अभी स्टडी करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स क्या है, लेकिन यहां हम सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझते हैं, और देन फिर हम आएंगे वापस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स की तरफ। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं, इसको हम देखते हैं पहले थोड़ी इसकी एनिमेशन, और फिर हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं। स्टूडेंट, ये जो हमारे पास एनिमेशन दी गई है, इसमें हमें देखें कि डिफरेंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करती है, जिसकी वजह से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। इन वेव्स को किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, ये वेव्स खुद ही, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड खुद ही ऑसिलेट करती हैं, जिससे एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब अगर आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसे कह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड किसे कह रहे हैं, तो इसके लिए आपको शायद थोड़ा सब्र करना पड़े। ये अगले चैप्टर्स में इंशाल्लाह ये आप समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या है। अभी यहाँ इसको डिस्कस करना कुछ मेरे ख्याल में इतना ज़रूरी नहीं है। तो अब हम इसके पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। तो पॉइंट्स की तरफ अगर हम मूव करें, तो पहला पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसे हम ईएम वेव्स भी कहते हैं, आर द वेव्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती हैं, विच ट्रैवल थ्रू टुगेदर थ्रू स्पेस, ये स्पेस में ट्रैवल करती हैं। अनलाइक साउंड और वाटर वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट नीड अ मीडियम। जिस तरह के साउंड और वाटर वेव्स में मीडियम की जरूरत होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की जरूरत नहीं होती। ये वैक्यूम में भी या एम्प्टी स्पेस में भी ट्रैवल कर सकती हैं। अब इनकी नेचर की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेसिकली ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों जो फील्ड हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, वो परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करती हैं। ये ट्रांसवर्स का एक मतलब तो आपको समझ आया कि अगर फील्ड, दो जो फील्ड्स हैं वो परपेंडिकुलरली इन रिलेशन में हो, तो इसे हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है कि वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की जो स्पीड है, ये स्पीड ऑफ लाइट होती है। स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल करती हैं, और ये हमारे पास है 3 × 10⁻⁸
8 मीटर पर सेकंड। लाइट बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं, लाइट वेव्स हो गई हैं, एक्स रेज हो गए हैं, ये जो वेव्स है, रेडियो वेव्स हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं। फिलहाल तक आप इतना ही रहें, वैसे तो ये काफ़ी डिटेल कॉन्सेप्ट है। अब हम मूव करते हैं अपनी अगली स्लाइड्स की तरफ। स्टूडेंट, अब बारी आती है, ये तो हमें देखा कि मीडियम की ज़रूरत जिसको नहीं होती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब हम देखते हैं कि मैकेनिकल वेव्स में किस तरह से मीडियम की ज़रूरत होती है, और इसमें हम पहले डिफरेंस देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स का। और स्टूडेंट, अगर मैं कहूँ कि पूरे लेक्चर का क्लाइमैक्स है ये, तो ये जो है वो क्लाइमैक्स है, यहाँ से स्टोरी सडन चेंज हो जाएगी। तो देखते हैं, समझते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या है, और मैं इसको हाईली रेट करूंगा पूरे लेक्चर में। इस टॉपिक को सबसे ज़्यादा रेट करने वाला हूं क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर में, एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। बच्चे याद करके तो ले जाते हैं लेकिन उनको एक्चुअल सिनेरियो का नहीं पता होता। आई होप कि आप एनिमेशन से बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि ट्रांसवर्स वेव्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ देखें कि सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं ट्रांसवर्स वेव्स को। यहाँ देखें कि जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास एक रोप है और एक साथ ऑसिलेटर है। अगर हम इस ऑसिलेटर को मूव करवाएं तो आप देखेंगे कि ये जो इसके एटम हैं, डिफरेंट एटम्स हैं, वो ऑसिलेट करेंगे अप एंड डाउन। तो ये ऑसिलेट कर रहे हैं अप एंड डाउन। अब थोड़ा इनको ना स्लो मूव करवाते हैं, ये काफ़ी तेज़ी से मूव कर रहे हैं। तो ये देखें कि आप ये डिफरेंट एटम्स मूव कर रहे हैं, अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, और वेव्स आगे की तरफ ट्रेवल कर रही हैं। इस ग्रीन वाले एटम्स को आप सिर्फ देखें, इस ग्रीन वाले एटम्स को। ये ग्रीन वाला एटम कैसे मूव कर रहा है? ये कभी ऊपर जा रहा है, और यही एटम जो है वो कभी जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ये एटम कभी ऊपर मूव करता है और ये एटम कभी नीचे मूव करता है। और वेव्स को देखें कि वेव्स किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। वेव की जो डायरेक्शन है वो इस तरह हॉरिजॉन्टल है, आगे की तरफ। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिसमें वेव्स की डायरेक्शन, ये वाली जो है वो वेव्स की डायरेक्शन है, और जिसमें पार्टिकल्स की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, वो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। अब आप इसमें इस पॉइंट को अभी हम लिखेंगे भी सही, यानी इस पॉइंट को अगर हम लिखने की कोशिश करें तो हमने ये बात समझी कि द वाइब्रेटरी मोशन, ये वाइब्रेटरी मोशन है। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वाइब्रेटरी मोशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो अप एंड डाउन ऑसिलेट कर रहे हैं। वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ पार्टिकल का जो वाइब्रेटरी मोशन है ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। वो वेव्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। पार्टिकल्स की जो ऑसिलेशन है वो वेव्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। एक और पॉइंट स्टूडेंट देखें इसमें। दूसरा आप ये भी लिख सकते हैं कि द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ पार्टिकल्स मीडियम इज अप एंड डाउन टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। इसमें वेव्स की डायरेक्शन के अप एंड डाउन ऑसिलेशन कर रहे हैं पार्टिकल्स। तो ये पॉइंट भी आप इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसके मुकाबले में अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को समझते हैं इस एनिमेशन की मदद से। यहां देखें कि आप यूं अज्यूम करें कि ये जो लाइंस है ना, ये समझें कि एयर के पार्टिकल्स हैं। यानी यहां अगर मैं ड्रॉ कर दूं, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, एयर के मॉलिक्यूल कह लें, पार्टिकल्स कह लें, ये डिफरेंट जो हैं पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं। ये यानी एक लाइन जो है ना, ये तमाम पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। वो पार्टिकल्स की कलेक्शन या ग्रुप्स को हम एक लाइन कह रहे हैं। जिस तरह आपने वो पढ़ा है ना अभी पीछे वेव फ्रंट का, तो डिफरेंट पॉइंट्स को मिलाकर हम एक वेव फ्रंट बना रहे हैं, तो ये बेसिकली एक वेव फ्रंट ही है। हाँ, लेकिन यहाँ देखें कि ये डिफरेंट पार्टिकल्स मिल रहे हैं और इन पार्टिकल्स के मिलने से एक लाइन बनी हुई है। इस तरह आप अगर थोड़ा देखें तो ये थोड़ा वैसे इतना विजिबल नहीं है, लेकिन ये जो ग्रीन कलर है, ये जो ग्रीन कलर की ये वाला जो ग्रीन कलर की लाइन है, ये एक मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट बता रही है। इसी तरह सॉरी, ये रेड कलर की जो लाइन है ये मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट बता रही है, और ये जो ग्रीन कलर की लाइंस है ये भी मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट्स का हमें बता रही है। अब ये मॉलिक्यूल्स कैसे ऑसिलेट करेंगे, ये चीज़ आप लोगों ने देखनी है। मैं इन मॉलिक्यूल्स को ना थोड़ा मिटा देता हूँ जो मैंने अभी ड्रॉ किए हैं, ताकि ये हमें कन्फ्यूजन ना करें। ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। अब आप लोगों ने देखना है कि ये मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करते हैं। तो ये जो है, ये मॉलिक्यूल्स को देखना है आप लोगों ने। ये मॉलिक्यूल जो हैं वो मूव करेंगे कभी आगे और कभी पीछे। अब देखिएगा,
ये बेसिकली आप ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस के अंदर हो रहे हैं, ये एयर के मॉलिक्यूल आप समझ लें, या फिर स्प्रिंग के अंदर, इस तरह जो अभी हमने देखा भी था कंप्रेशन या रेयर फ्रिक्शन हो रही है। तो यहाँ देखें कि ये मॉलिक्यूल जो है, ये जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के ग्रुप्स है, ये क्या करता है, कभी आगे की तरफ ट्रैवल करता है, यहाँ हम लाइन लगा देते हैं, ये ऐसे आगे की तरफ ट्रैवल कर रहा है ये मॉलिक्यूल का ग्रुप, और यही मॉलिक्यूल का ग्रुप कभी पीछे की तरफ ट्रैवल कर रहा है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि वेव्स किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, ये देखें कंप्रेशन है, ये जो ब्लैक कलर का इकट्ठा ये जा रही है ना वेव्स, ये कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन, और दरमियान वाला हिस्सा रेयर फ्रिक्शन है। तो अब कंप्रेशन किस तरफ डायरेक्शन में जा रही है, वो भी इस डायरेक्शन में, और आप कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो भी इसी डायरेक्शन में आगे और पीछे मूव कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल्स की डायरेक्शन और वेव्स की डायरेक्शन, यानी पार्टिकल्स की डायरेक्शन और वेव्स की डायरेक्शन क्या है, वो पैरेलल है, क्योंकि वो उनमें 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहां हम लिखेंगे द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स, यानी वेव्स की डायरेक्शन और पार्टिकल्स की जो डायरेक्शन थी वो क्या थी, पैरेलल थी एक दूसरे के। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसमें सेकंड पॉइंट आप यूं भी लिख सकते हैं कि वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ पार्टिकल्स मीडियम इज बैक एंड फोर्थ, वहां हमने लिखा था अप एंड डाउन, यहां क्या होगा, बैक एंड फोर्थ। वाइब्रेटरी मोशन पार्टिकल का क्या होगा, बैक एंड फोर्थ होगा वेव्स की प्रोपगेशंस के। तो ये हमने यहां इसको समझा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो आप इसको दोबारा से देखें, आई होप कि आपको ये बात समझ आ जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट, सेकंड जो थर्ड हमारे पास पॉइंट है इसके डिफरेंस में, जो यहाँ थर्ड पॉइंट को जाने से पहले आप दोबारा देख लें वैसे इस एनिमेशन को, तो शायद आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये जो ऊपर हमारे पास वेव्स हैं ये हमारे पास हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जिसमें कंप्रेशन हो रही है और रेयर फ्रिक्शन है, और नीचे जो हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स हैं, इसमें कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन होती है और इसमें क्रस्ट और ट्रफ फॉर्म होती है। वैसे ये एक और पॉइंट भी हो गया है कि ट्रांसवर्स वेव्स में क्रस्ट और ट्रफ फॉर्म होती है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन ये फॉर्म होती है। तो अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि ट्रांसवर्स वेव्स मूव थ्रू सॉलिड एट अ स्पीड ऑफ लेस देन हाफ ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स सॉलिड में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के मुकाबले में आधी स्पीड से ट्रैवल करती हैं, यानी इनकी स्पीड कम होती है। इसी के मुकाबले में जब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मूव फास्टर थ्रू सॉलिड, ये सॉलिड में ज्यादा तेजी से मूव करती हैं देन थ्रू गैसेज और लिक्विड। गैसेज और लिक्विड के मुकाबले में ये सॉलिड में ज्यादा तेजी से मूव करती हैं, जबकि ट्रांसवर्स वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की निस्बत सॉलिड में आधी स्पीड से मूव करती हैं, लेस देन हाफ, यानी लेस देन हाफ से कम जो है वो मूव करती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, आई होप कि ये ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। देखें कि अब जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं इसमें साउंड वेव्स, ये अभी जो आप देख रहे थे इसको आप साउंड वेव्स भी कह सकते हैं या वेव्स प्रोड्यूस इन अ स्प्रिंग वो भी कह सकते हैं। और ये जो दूसरी जो ट्रांसवर्स वेव्स थी वो हमने रोप के अंदर प्रोड्यूस करवाई, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल्स भी बिल्कुल वैसे ही मूव करते हैं। तो जो आपने बात ट्रांसवर्स वेव्स में लिखी है वो अगर वाटर वेव्स में भी लिखते हैं तो इट्स ओके। बस आपने ये कहना है कि जो पार्टिकल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मूव अप एंड डाउन, यानी ये बात आपने ऐड कर देनी है इसमें टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। इसमें ये बात इस तरह से थोड़ी डेफिनेशन में चेंजिंग करके ट्रांसवर्स वेव्स का ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है साइज्मिक पी वेव्स और साइज्मिक एस वेव्स। ये क्या होती हैं? तो स्टूडेंट, ये बेसिकली पी वेव्स या एस वेव्स, पी स्टैंड फॉर प्राइमरी और एस स्टैंड फॉर सेकेंडरी, यानी वो वेव्स जो अर्थक्वेक के रिजल्ट में प्रोड्यूस होती हैं, पहले प्रोड्यूस होती हैं उसको प्राइमरी वेव्स कहते हैं, जो बाद में प्रोड्यूस होती हैं उसको सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। अच्छा, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि जो प्राइमरी वेव्स हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं और जो सेकेंडरी वेव्स हैं ये ट्रांसवर्स होती हैं। दोनों की दोनों अर्थक्वेक के रिजल्ट में प्रोड्यूस होती हैं। अब इन दोनों का मजीद डिफरेंस देखते हैं। यहां देखें कि अगर हम लिखें इसको दोनों को साथ साथ लेकर चलते हैं कि जो साइज्मिक पी वेव्स हैं इसकी टाइप जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है, जबकि साइज्मिक एस वेव्स की जो टाइप है वो ट्रांसवर्स है। पार्टिकल मोशन इसमें क्या है, वाइब्रेट पैरेलल करता है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल में पार्टिकल्स पैरेलल वाइब्रेट करते हैं, यहाँ पार्टिकल्स
परपेंडिकुलर वेव करते हैं, परपेंडिकुलर मूव करते हैं, किस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं? वेव की डायरेक्शन के। और यहाँ पैरेलल किसकी डायरेक्शन के होते हैं? वेव की डायरेक्शन के। इनकी स्पीड जो है वो फास्टर होती है, तभी तो ये प्राइमरी वेव्स हैं। इसी तरीके से इनकी जो स्पीड है वो थोड़ी लेस होती है। अच्छा, ये जो है वो ट्रैवल करती हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ये सॉलिड में भी ट्रैवल कर सकती हैं, लिक्विड में भी और गैसेस में भी, लेकिन ये ट्रैवल करती हैं ओनली सॉलिड, यानी फ्लूइड्स में ये ट्रैवल नहीं कर सकती। इसकी जो डैमेज होती है वो लेस डिस्ट्रक्टिव होती हैं, यानी लेस डिस्ट्रक्टिव काज हो सकती है इसकी वजह से, लेकिन इसमें मोर डिस्ट्रक्टिव कैन बी काज्ड। अच्छा, अब ये जो हमारा लेक्चर था वो कंप्लीट हुआ यहाँ, और आई होप कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है या कोई टॉपिक आप लोगों को समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। इंशाल्लाह इसको मज़ीद जो है वो आसान अल्फाज में बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन कोई क्वेश्चन है तो लाजमी पूछें, क्योंकि जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे उतना ज़्यादा सीखते चले जाएंगे। इसके बाद होपफुली हमारा मैं कोशिश करूँगा कि एक ही लेक्चर मज़ीद हो, ताकि ये हमारी सारी इस चैप्टर की थ्योरी उसमें ख़त्म हो जाए। तो मिलेंगे न्यू वीडियो लेक्चर के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए।